A lot of people during the UPSC journey keep asking me this very simple question ki how do I improve? How do I get more marks? Or how do I eventually succeed in the exam, clear prelims, clear mains? कहीं पे भी जो भी आपको अटक रहा है, प्रॉब्लम हो रही है कि improve नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करें? Because everybody wants to be successful in this exam. And I'll tell you what, there's an open secret to how to improve in this exam, and yet for some reason people are just not, using it. So in today's video, let's talk about this open secret. Now, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस open secret के साथ ये आती है कि there are two very simple reasons for why people are not able to make the most of it. Number one is the comfort zone. Comfort zone क्या है कि मैं effort तो मार रहा हूँ, I'm putting in 5, 6, 7 hours a day, 5, 6, 7 hours a day, but मुझे रिव्यू नहीं करनी चीजें. मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो when we are not reviewing, meaning we are not looking back at our preparation, we are not looking at whether what we're doing is leading to the results that we want, we're not making progress. Second is ego. यहाँ पे क्या होता है? Tests. एंड टेस्ट देने से हमें डर लगता है, हमारा मन नहीं करता है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट आई विल स्कोर पुअरली इन अ टेस्ट, एंड दैट एंटायर रियलिटी जो मेरे मन में मैंने बनाई हुई है कि मैं आईएएस बन के ये कर दूंगा, मैं आईपीएस बन के उसको अंदर कर दूंगा, XYZ, आई विल नॉट बी करप्ट एंड आई विल जेल ऑल द करप्ट पॉलिटिशियंस इन XYZ. जैसे ही हम टेस्ट देते हैं, दैट एंटायर ख्याली पुलाव कम्स क्रैशिंग डाउन बिकॉज यू आर फेस्ड विद द रियलिटी दैट मे बी यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. एंड दिस इज व्हाट द ओपन सीक्रेट इज, दैट द ओपन पार्ट ऑफ इट इज that tests are one of the best way for you to make progress. The secret part over here is how do you use these tests? क्योंकि बेसिक सी चीज है ना, everybody knows टेस्ट तो देने ही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? And this is where in this video we'll discuss कि भाई both for prelims and for mains how do you actually use a test series? क्योंकि टेस्ट सीरीज की कमी आज की डेट में आपको नहीं है. There used to be a time 10-15 years ago when I started preparation back in 2014-15. उस टाइम पे टेस्ट सीरीज कम होती थी. There used to be 1 or 2 good test series, and now टेस्ट सीरीज की कमी नहीं है. और तो और भला आप AI जनरेटेड टेस्ट सीरीज अपने आप की बनवा लो, उसको 10 साल के PYQs दे दो चैट जीपीटी को, and you'll get by. But how do you make use of it? We'll talk about it. In prelims, we'll talk about both GS and CSAT. And in mains, we'll talk about primarily GS में specific एक थोड़ा mention कर देंगे हम essay को, and optional वाली जो चीज़ है उसके बारे में basic बात हम करेंगे because again each optional is different and I will not be able to cater to each and every one of them. तो there'll be a slight focus over here कि भाई sociology and other social science options है, उनमें आप basic के principles follow कर सकते हो. So let's start the discussion with mains कि भाई अभी recently UPSC mains 2025 has happened, and there are a lot of debates and discussions about कि okay, I don't even understand what the question is, I don't know how to approach this, that, XYZ. If you've not seen mains का paper, please go ahead and check it out. मतलब available on the official website, if not unofficially हमारे Telegram channel पे भी आपको मिल जाएगा, सब कहीं मिल जाएगा, ढूंढने वाले बनो. The biggest problem that people have with mains is that they don't know how to write an answer, and that's good. And this is where the purpose of a test series comes in. People feel कि मुझे टेस्ट सीरीज में करना क्या है, मुझे जल्दी लिखना है आंसर, मुझे 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है. नो, अ टेस्ट सीरीज का पर्पस है फॉर यू टू टेस्ट योर आइडियाज, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव सम आइडियाज. व्हाट आर दीज आइडियाज? व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? इसमें कुछ बेसिक चीजों की हम बात करेंगे, एंड थोड़े उसके बाद देखेंगे हम कि कलाकारी क्या होती है मेंस के आंसर्स में. विल ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एसेज. ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल में बेसिक चीजें हमें करनी है. नंबर 1, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स. मतलब इट बेयर्स रिपीटिंग एंड आई एम डूइंग इट अगेन ओवर हियर दैट अ लॉट ऑफ पीपल फील कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लूंगा एंड मेरा सोशियोलॉजी में कोई बैकग्राउंड नहीं है एंड मैं जस्ट बेसिक बुक्स पढ़ के आई विल बी एबल टू डू फाइन. आई वुड लाइक टू रियली पुट इन योर हेड कि बेसिक काम करने से नहीं होगा. फंडामेंटल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे यहाँ पे, एंड बहुत बार क्या होता है, इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. सो आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट में नहीं है जहाँ पे आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो, डू कंसिडर टेकिंग क्लासेस. राइट, मतलब दिस कैन बी एनी क्लासेस, कहीं से भी आप ले सकते हो, बट डू कंसिडर टेकिंग सम क्लासेस. क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड ये राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आपको फीडबैक फ्रॉम एन एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलता है जो कि आपके आंसर्स देख के आपको बता पाए कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वेरी वेरी यूजफुल. ऑप्शनल के लिए बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट माइट बी गोइंग इनटू टेरिटरीज कि भाई मैथ के लिए ये वैलिड नहीं है या साइकोलॉजी के लिए वैलिड नहीं है. सो देयरफॉर आई विल लीव दैट अप टू यू. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट
GS। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है कि देयर इज स्टेप नंबर 1 स्लो इज स्मूथ एंड स्टेप नंबर 2 स्मूथ इज फास्ट। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, if you have seen any mains ka recent videos, so you will hear ki, I am supposed to write a 10 marker in 7 minutes and I'm supposed to write a 15 marker in 11 minutes. The first step of the process to improvement in mains is to forget about this. Forget about these 2 marks and these 2 numbers and just focus on writing good answers. Now good answers का यहाँ पे क्या मतलब है? A lot of people also then ask कि भाई good answers में do I read the material first, कि मैं पहले solution पढ़ लूँ उसका और फिर मैं आंसर लिखने की कोशिश करूँ? If you're just starting out answer writing preparation, your practice, sure, go ahead and do that. But in the long run, that is not a very good practice. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग को अगेन वो कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं। कंफर्ट जोन कैसे? कि भाई मैं सारा एफर्ट देख लिया एक बार क्या क्या लिखना था और फिर अब मैं लिख के देखता हूँ। तो मेरा दिमाग तो यूज हो ही नहीं रहा है, कभी दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा तो दिमाग को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं आएगा। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेन यू आर फेस्ड विद दैट एक्चुअल प्रॉब्लम इन द एग्जाम हॉल, सो देन भी फिर आप सोच रहे होगे कि भाई यार सोल्यूशन मिल जाता तो फिर इतना बढ़िया आंसर लिख देता मैं इसका, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू। तो इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर्स व्हाट आई नीड टू डू इज प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस यहाँ पे 2-3 तरीके की हम कर सकते हैं। 2-3 तरीके की कैसी प्रैक्टिस है? फर्स्ट इज टॉपर कॉपीज। मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज निकालूं कि भाई लेट्स से अनिमेश प्रधान है या मतलब आदित्य श्रीवास्तव है या जो भी आपको पसंद है कि भाई मतलब ये इंसान मेरे को बहुत बढ़िया लगता है एंड इसकी आंसर कॉपीज मैं देखना चाह रहा हूँ। आपके ऑप्शन में भी आप इस चीज को कर सकते हो। टॉपर की कॉपीज निकालो एंड इनमें से कॉपी क्वेश्चंस उठाओ इनके वाले और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लिखने की कोशिश करो। ये क्या करेगा? दिस विल सेट अ बेंचमार्क इन योर हेड। व्हाई? बिकॉज जो टॉपर कॉपीज में आपको दिखेगा दैट इज द वन ऑफ द वेरी गुड आंसर्स एंड देन यू वांट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं कैसा आंसर लिख रहा हूं। ये बेंचमार्क जो है, दिस बेंचमार्किंग इज अ एसेंशियल प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंप्रूव। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि आज मैं कहां खड़ा हूं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक प्रोग्रेस। बेंचमार्क करो, टॉपर कॉपीज को उठाओ, उनके क्वेश्चंस को कॉपी करो, ट्राई एंड राइट डाउन। क्वेश्चन कॉपी करने का मतलब क्या है कि खाली अपना ब्लैंक शीट पे टॉप पे लिख लो वो क्वेश्चन एंड देन राइट डाउन द आंसर एज बेस्ट यू कैन। वंस यू डन दैट, कंपेयर इट टू द टॉपर का कॉपी एंड सी कि अच्छा व्हाट एल्स कैन आई इंप्रूव ओवर हियर, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आई कैन डू। सेकंड, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ऑर्डर फॉर यू टू इंप्रूव। क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है दैट इज द एक्चुअल लैंग्वेज दैट यू विल फेस इन द एग्जाम। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ओवर हियर तो फिर पेपर में जाके भी यू विल फेस अ लॉट ऑफ इशू। यहां पे अटेंशन टू वेदर यू हैव मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? अब ऐसे में होता क्या है कि बहुत बार यू विल फील कि यार मतलब मैं कर तो दिया, इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, बट हाउ डू आई गेट दिस इवैल्यूएटेड? So for this, there's a very unique course upscprep.com has, which is Write Unlimited, and the idea over there is exactly this कि भाई आपको टॉपर के आंसर्स लिखे हैं आपने दोबारा, आपने PYQs लिखे हैं, आप दिन में 5 आंसर लिखना चाहते हो, आप दिन में 10 आंसर लिखना चाहते हो, आप दिन में 2 आंसर लिखना चाहते हो, whatever you want to do, we will evaluate it for you, and our expert team does that really well within 72 hours of submission, and at the same time इसमें आपको mentorship का access भी मिलेगा जहाँ पे मैं भी, शशांक सर भी, केतन सर, past rankers are going to be your mentors. तो do check out Write Unlimited. I think बहुत ही limited time के लिए कोर्स ओपन होता है हमारा because इसमें जब लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो then we don't want to overburden ourselves कि भाई मतलब 5000 पेपर आ गए और फिर पेपर चेक नहीं हुए, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। So check that out. But the idea is इन तरीके से क्वेश्चन आप जब एक बार बेंचमार्क कर लेते हो एंड जब आप डिमांड समझने लगते हो क्वेश्चन की, that is the first part of स्लो इज स्मूथ, कि अब मुझे थोड़ा सेंस आ गया है दैट हाउ डू आई राइट गुड आंसर्स, राइट? एंड वंस आई स्टार्टेड राइटिंग गुड आंसर्स, दैट इज व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग फास्ट। ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में मैंने इसीलिए तोड़ा है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, विच अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इन 7 minutes whatever comes to my mind. What we do is we develop some bad habits. और ये बैड हैबिट्स देन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक। क्यों? क्योंकि सोचने का तरीका हमारा खराब हो चुका होता है। हमारा तरीका क्या बन गया होता है? मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं और वो लिखते लिखते मैं सोच रहा हूं कि अच्छा अगला पॉइंट क्या होगा, दूसरा लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट सोच रहा हूं,
जब इस तरीके से मैं आंसर को अप्रोच करता हूं तो देन आई एम जनरली गेटिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज इट्स अ लेबोरियस प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सारे क्वेश्चंस को गहराई से थोड़ा देखता हूं तो मुझे समझ आएगा कि यार डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है ना, काफी हद तक मैं सिमिलर तरीके से अप्रोच कर सकता हूं. या मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं या इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर सम बेसिक आइडिया, सम टेम्पलेट्स दैट आई कैन यूज, बट I need to really modify them according to the question at hand. So that is why you have to get a sense of what is a good answer, and then you need to start writing fast. Right? So this is for your mains preparation. अब मेंस की प्रिपरेशन में एस्से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. एंड एस्से की प्रैक्टिस के लिए दिस इज समथिंग लाइक जो एस्से का कोर्स आई हैव बीन टेलिंग दिस वेरी 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 importantly, this is the first priority, first and foremost, that you stick to the topic. I don't care if आपके एस्से में आपने पोएम से शुरू किया है, आपने बहुत ही बढ़िया कोई एनेक्डोट या स्टोरी दे दी है, अगर रेस्ट ऑफ द एस्से इज नॉट ऑन द टॉपिक. तो when you are writing your essay, always ensure that you're sticking to the topic. This is the first priority for you. Nothing else matters. Second priority is structure. If your essay is easy to read, your life, the examiner की life also becomes easy. And finally हमारी आती है कलाकारी, which is your quotes, your anecdotes, and the same priority order अगर आप GS के आंसर्स के लिए भी लो वो भी चलेगा. Slow is smooth, smooth is fast. अब मैं कोशिश करूं कि अच्छा मैं डायग्राम भी बना दूं, अब मैं डेटा फैक्ट भी डाल दूं, अब मैं फ्लो चार्ट भी बना दूं, and all of that. After all of this, in essay, the best way for you to get your essay evaluated, checked, or verified is to show it to your parents, show it to your friends, use chat gpt, right? और ज़्यादा गाली खानी है तो find some place on the internet and post your essay, although I don't know if people will read it, but that's the idea कि when we are trying to push ourselves to write better because we are going to show it to somebody, then is when we improve. तो essay के लिए highly recommended that you try and show your essay to your parents and friends. अगर एक और आपको sense of वो चाहिए कि भाई नहीं, I want to write really well, a very simple thing that you can do, letters to the editor, right? Just write a letter based on whatever editorial or opinion piece that you have read in the newspaper today and send a letter to the editor. Who is stopping you? Now ये मैं क्यों बोल रहा हूं, सिर्फ लिख लो और लिख के रख लो अपने आप से, तो क्या होता है ना कि we don't even pay attention to whether we're writing well. But when we're writing to send it to somebody, either we want to show it to parents or to friends or to the editor, maybe none of them will reply, maybe none of them will give us like the feedback that we want, but at least we will try our level best कि हाँ यार थोड़ा मैं इसको improve करने की कोशिश करूँ. And that conscious effort to improvement, that is when we have to get out of the comfort zone. That is when we have to surrender the ego. क्यों? क्योंकि अब किसी को दिखाया है तो वो बुरा बोल सकते हैं, एंड बुरा बोलेंगे तो हाँ शायद आई विल इम्प्रूव. एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्यों? क्योंकि किसी को दिखाना है तो एफर्ट मार के मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कचरा दिखाने तुम मतलब क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सो दैट्स द आइडिया. बोथ इन जीएस एंड इन द एस्से देयर आर सम बेसिक रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, एंड इफ यू फॉलो देम लाइफ बिकम्स ईजी. व्हिच ब्रिंग्स अस टू प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में हमारा जो टेस्ट सीरीज है दो पार्ट्स में ऑब्वियसली डिवाइडेड रहते हैं, एंड जीएस का टेस्ट सीरीज एंड सीसैट के टेस्ट सीरीज के लिए दोनों के लिए हमारे थोड़े डिफरेंट रूल्स रहेंगे. बेसिक रूल्स हैं बट डिफरेंट. सीसैट की पहले बात करते हैं. सीसैट में इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस. अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे जस्ट टेंड टू रीड द सोल्यूशन, कि मतलब ये क्वेश्चन था इसका ऐसा सोल्यूशन आएगा, मैंने रीड कर लिया और मुझे समझ आ गया. प्लीज डोंट डू दैट. प्रैक्टिस. मैथ इज वन प्रोसीजरल एरिया. मतलब सीसैट क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज है. प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब कि अगर लेट्स से मुझे डोसा बनाना है, तो which do you think is going to be like a better way for me to remember how to make a dosa? One, I've read the recipe somewhere. Two, I've tried to make the dosa. Let me know in the comments, because that's the same idea that applies over here. प्रैक्टिस करोगे, मतलब कमेंट में बताने की जरूरत अब तो क्या ही है, बट दैट्स द आइडिया कि if you really try and make that dosa, you will remember it much more. You will remember जब वो क्रंच मोमेंट आएगा तो उस मोमेंट में वो याद आएगा. क्यों? क्योंकि गलती करके देख ली थी. तो प्रैक्टिस. Don't just read the recipe and be done with it. Second,
यू नीड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. नाउ दिस इज वेयर जब बार बार हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यार ये टाइम एंड डिस्टेंस के ना इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, या भाई ये अपना मेंस्ट्रुएशन के या ब्लड रिलेशंस के ना इस टाइप के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो फिर उसमें हमें सिंपली अपने कुछ मॉडल सॉल्यूशंस बना के रख लेने हैं कि भाई ब्लड रिलेशन में ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको A, B, C सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है. ये सॉल्यूशन अपने बना के रख लो एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू विल देन गो एंड रिवाइज इन द लॉन्ग रन. तो टेस्ट हम क्या दे रहे हैं? टेस्ट ओवर हियर इज मोर फॉर प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कि भाई मतलब मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड उस चीज को फिर मैं पैटर्न आइडेंटिफाई एंड मॉडल सॉल्यूशन उसके बनाऊं. मॉडल सॉल्यूशन के लिए यू कैन यूज AI टूल्स, बट मैथ में कभी कभार AI टूल्स गलतियां करते हैं, तो प्लीज डू क्रॉस वेरीफाई बाय योरसेल्फ एक बार, राइट? व्हिच ब्रिंग्स अस टू GS. नाउ GS में देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस ओवर हियर. एक तो सबसे पहली चीज हम सिंपल काउंटिंग करना शुरू करेंगे. सिंपल काउंटिंग का क्या मतलब है? सिंपल काउंटिंग इज द आइडिया दैट जस्ट कीप अ सेंस ऑफ कि अच्छा आई गॉट दिस मेनी क्वेश्चंस करेक्ट एंड दिस मेनी क्वेश्चंस रॉन्ग. बहुत से लोग ये भी नहीं करते हैं बिकॉज लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कोर्स, हु आई मीट ऑन सोशल मीडिया, हु आई मीट इन जनरल इन मीटअप्स, एंड दे विल टेल मी कि मेरे 60 मार्क्स आए. कितने क्वेश्चन सही कितने गलत वो नहीं देखा. क्यों नहीं देखा भाई? तो लाइक स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक सिंपल काउंट, राइट? सिंपल काउंट के बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और सिली मिस्टेक्स की, एंड देन सम सेकंड डिग्री एनालिसिस. सो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये 3 टाइप की मिस्टेक्स है क्या क्या. अ conceptual mistake is when I don't know the concept, right? As simple as that. अब don't know के कई कारण हो सकते हैं कि भाई haven't read और forgot, या मतलब कि भाई बिल्कुल ही नया नवेला कोई कॉन्सेप्ट आ गया जो बेसिक्स में है ही नहीं, तो अगेन दैट विल बी समथिंग टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर. बट कंसेप्चुअल मिस्टेक्स के 2 मेजर आपके कारण हैं. या तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं है कभी, या मैं पढ़ के भूल गया. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में अगर देखें, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू द पोल्स. तो ट्रोपोस्फेयर आप पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर का थिकनेस आप थोड़ा बेसिक पढ़ते हो, विंड सर्कुलेशन आप पढ़ते हो. ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो कॉन्सेप्ट लगा के यू विल बी एबल टू सॉल्व. सिमिलरली पॉलिटी में आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन, वेरिएशन, रिपील. अगर आपने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी पढ़ा है, यू शुड बी एबल टू डू दिस. इट्स ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट. इकोनॉमी में ये तो सीधी सीधी अपनी डेफिनेशन है, राइट? कि भाई टोटल फर्टिलिटी रेट का डेफिनेशन अगर आपको पता है, you should be able to solve this question. All of these are actual prelims questions and that's the idea कि अगर इन questions में आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो ज़्यादा दिक्कत है हमें, बट उस पर भी बात करते हैं कि solution क्या है. तो these are conceptual mistakes. Then there are factual mistakes. Now this is a question again from geography, but इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इसमें बस आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है कि भाई धुआंधार फॉल मालवा रीजन में है, नर्मदा रिवर पे है. मे बी ओके आई न्यू कि भाई धुआंधार नर्मदा पे ही है, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इन मालवा. तो भाई कैसे करें? अब हुंड्रू ऑन सुबर्णा रेखा इन छोटा नागपुर, गरसोप्पा ओवर हियर. तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सिमिलरली अगर इस पे जाएं, मेडिवल इंडिया, which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? अगेन ये बहुत ही ज्यादा कि भाई आपको पता है तो हाँ जी आपको पता है, कहीं से पढ़ा था, याद है, वेल एंड गुड. नहीं है तो नहीं कर सकते. सिमिलरली फॉर एनवायरमेंट कि भाई which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो ये गलत होगा. अगर आपको पता है ये तो यू नो वेल एंड गुड, यू नो द आंसर. These are factual questions in which you need real information. There is no logic, there is no like XYZ. बस आपको fact याद था तो this is a lot based on memory. जैसे कि ये पिछले वाले जो थे ये हमारे काफी बेस्ड थे on logic. कि अगर total fertility rate, let's say कि मुझे अगर नहीं भी पता, तो अगर मैं अंदाजे से यहाँ पे चलने की कोशिश करूं तो number of children born per year per 1,000 people in the population in a year seems more like, you know, birth rate होता है ये. Number of children born to a couple in their lifetime in a given population, okay, possibly. The birth rate minus death rate, ये तो growth हो गया सीधा सीधा.
and average number of live births a woman would have by the end of her childbearing age. So between B and D, I would want to choose the right answer over here. And this you can let me know in the comments कि भाई which do you think is the correct answer. But you get the point. Logic लगा के इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता. So that's the basic difference between conceptual and factual questions. तीसरा टाइप की कैटेगरी में हम आते हैं which is silly mistakes. नाउ सिली मिस्टेक्स का क्या है सिंपल आइडिया कि मैंने पढ़ने में गलती कर दी या मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो फिर आई मेड अ मिस्टेक व्हिच आई वुड नॉट हैव अदरवाइज. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, शांति निकेतन, रानी की वाव, ensembles ऑफ द होयसलास एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया. तो जल्दबाजी में अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये पढ़ने की बजाय इंक्लूडेड इन 2023 मैं सीधा जाके यहां बोलूं अरे यार ये तो सारे हैं, बहुत बढ़िया, ऑल फोर. बट क्वेश्चन इज इन 2023, तो सिली मिस्टेक इसको मैं बोलूंगा कि इवन दो आई न्यू द आंसर, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था ये, इवन देन होगा क्या कि भाई बिकॉज जल्दबाजी में मैंने सही की बजाय गलत आंसर कर दिया, even though I knew all of it. Sometimes the question will ask you which of these are incorrect options, and आप जल्दबाजी में हाँ टिक टिक टिक, हाँ जी भाई बहुत बढ़िया, करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट है, सही है. तो these are silly mistakes. तो I hope the three categories of mistakes in prelims are absolutely clear to you. You have conceptual mistakes, you have factual mistakes, and you have silly mistakes. तो यहाँ पे भी basic idea है. Now somebody might be asking कि भाई मतलब how do I identify whether it's a conceptual question or a factual question? This will come the more you read the subjects. So the basic difference between these three kinds of mistakes and errors is how we deal with them. कि भाई एक तो conceptual mistake जो है हमारी, माने कि हमें कहीं ना कहीं problem है in understanding what is being taught in the subject. If I don't understand what is Coriolis force, that is a conceptual mistake to make. मुझे और time spend करना है geography में, मुझे और depth में जाना है. I want to figure out कि भाई कौन सी वीडियो से मुझे समझ आएगा, कौन से AI टूल से मैं explanation ले सकता हूँ, and those sorts of things. तो conceptual mistakes I want to minimize. I want to reduce as much as possible close to zero. Factual mistakes कुछ हद तक मुझे tolerate करनी पड़ेंगी, right? क्योंकि क्या होता है, nobody has perfect memory, and perfect memory छोड़ो, होता क्या है कि कभी भी जब हम देखते हैं कि भाई अच्छा ऐसा फैक्ट फिगर है, तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ है. I may not remember the exact thing, but I'll be like हाँ something like that is over there. In such a case, there will be times where sometimes you'll make a correct guess and sometimes you'll make an incorrect guess. So there are certain amount of mistakes which are factual you need to tolerate. यहाँ पे हमारा second order analysis आता है, उसके बारे में अभी थोड़ा बात करते हैं. Second order analysis से पहले दो we want to talk about silly mistakes. Silly mistakes is again the category that should be zero. ये mistakes बिल्कुल भी tolerate नहीं करनी है. मतलब this is जो नंबर पाए हुए थे वो खो रहे हो. एंड इफ दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स यू आर मेकिंग इन योर टेस्ट, माने कि आपको कहीं ना कहीं फोकस का प्रॉब्लम है. यू नीड टू रियली मेडिटेट, यू नीड टू रियली मतलब फोकस ऑन कि भाई मतलब मेरा न्यूट्रिशन सही है, मुझे प्यास तो नहीं लग रही थी, मुझे भूख तो नहीं लग रही थी. टेक क्यूज फ्रॉम योर बॉडी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई मतलब आते हुए सवाल गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होना है. व्हिच ब्रिंग्स अस टू सेकंड ऑर्डर ideas या second order analysis. Second order analysis particularly in case of factual and conceptual questions क्या रहता है कि there are some subjects which have more factual questions than others. One clear example of this will be कि भी current affairs के जो भी आपके questions रहते हैं they are a lot more factual, क्योंकि current affairs में आपके जो conceptual questions होते हैं मतलब rare हैं. At the same time subjects like environment, ancient and medieval, these are again very fact heavy subjects. Science and tech is another one of those subjects which can be considered as very fact heavy, क्योंकि आपसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत माइन्यूट चीजें कभी कभार पूछ लेंगे. स्टिल देयर इज सम लॉजिक एटलीस्ट इन साइंस एंड टेक, बट एंशिएंट एंड मेडिवल में तो आपको राजे महाराजे का या उस डायनेस्टी का नाम नहीं याद है तो नहीं याद है. सिमिलरली एनवायरमेंट में आपको चिड़िया पक्षी का नाम नहीं याद है तो नहीं याद है. तो सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस हमारा यही है कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स ओवरऑल जो कि ज्यादा फैक्ट हैवी होते हैं, तो वहां पे मुझे रिस्क नहीं लेना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ. लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी कर रहा था तो आई डिड नॉट लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क इन इकोनॉमिक्स फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि कौन सा फैक्ट बेस्ड है और कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल हैव टू डू फॉर योरसेल्फ. ओवर टाइम वंस आई रियलाइज्ड कि भाई अच्छा इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक्स पे क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ फिर कतई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो इफ आई कैन सेग्रीगेट बिटवीन दीज टू, I was very good at the conceptual questions, and
very bad at the factual ones. So that's what you have to understand for yourself कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट में आपको इजी होता है कि अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको जल्दी जल्दी मैं इग्नोर करता चलूँ. पर्टिकुलरली एनवायरमेंट एंड एंशिएंट मेडिवल में अगर आप ये कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो दैट हेल्प्स डेवलप दैट मसल फॉर यू. सो दैट्स द आइडिया कि जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की हम एनालिसिस कर रहे हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल एंड सिली मिस्टेक्स में तोड़ो, एंड उसके बाद आप देखो एक बार कि भाई कहाँ मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मुझे मिनिमाइज करना है, सिली मिस्टेक्स को मुझे एलिमिनेट करना है. यहाँ पे कभी कभार फिर भी मिस्टेक्स होंगी, क्यों? क्योंकि पता तो है ही ना कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में. मे बी छोटा सा एक स्टेटमेंट गलत रह गया, स्टिल फाइन, आई वांट टू मिनिमाइज दिस, एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एंड ये हमारा थोड़ा टॉलरेट होगा. सो with these ideas in mind, I want you to go ahead and try and see कि भाई आप टेस्ट सीरीज से कैसे सीख पाते हो. Because in the end, this is the first thing that we discussed in this video, कि ओपन सीक्रेट है ये, बट हमारा जो कंफर्ट जोन है और हमारा जो ईगो है, ये दो सबसे बड़ी हमारी दिक्कतें हैं which don't let us improve. So that's it for today's video. All the best on your UPSC journey.